السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے بلا تاخیر ہم اور آپ رسول کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے لیے مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ آج شہر بستی میں وہ عظیم ہستیاں جلوہ گر ہیں جن کے دم قدم سے اس وقت سنیت کی بہار ہے۔ حضور محدث کبیر جن کی عمر مبارک 93 سال کے قریب رات کے اس وقت میں شگفتہ پھولوں کی طرح اپنے رخ زیبا سے ہم کو اور آپ کو محظوظ کر رہے ہیں۔ حضور گلزار ملت طویل سفروں کے بعد بھی اپنے مبارک چہرے سے ذرا بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ بغل میں شہزادے حضور فقیہ ملت بھی تشریف فرما ہیں اور شہزادے حضور محدث کبیر بھی جلوہ فرما ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے جلووں سے ہم اور آپ اپنی آنکھوں میں نور بھر رہے ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس میرے اعتبار سے ایک تاریخی اجلاس ہے، اس لیے کہ عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داروں نے جن شخصیتوں کو بلانے میں کامیابی حاصل کر لی، ان میں سے کوئی ایک شخصیت بھی اگر کسی کانفرنس میں پہنچ جائے تو اس کانفرنس کی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور یہاں تو الحمدللہ ہندوستان کا دل و دماغ موجود ہے۔ اس لیے میں کمیٹی کے اراکین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ عزیزم حافظ تبریز سلمو اور ان کے رفقا کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات نے ابھی چند ماہ قبل اسی جگہ پر ایک شاندار اجلاس کر کے اپنی دینی بیداری کا ثبوت دیا تھا، اور پھر چند مہینوں کے بعد ایک بڑا انتظام کر کے انہوں نے علماء کا نورانی قافلہ یہاں پر جمع کر لیا۔ میں ان نوجوانوں کے لیے کہوں گا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ اس وقت ان حالات میں تحفظ عقائد اور فضائل اہل بیت کے عنوان پر خطاب سنانے کے لیے علماء کو جمع کر رہے ہیں، آپ کو جمع کر رہے ہیں۔ گویا یہ اپنی مذہبی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عقائد کا تحفظ اور فضائل اہل بیت کے عنوان سے خطاب کرانے کے لیے انہوں نے علماء کو جمع کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ الحمدللہ اہل سنت کا رشتہ رسول پاک سے لے کر کے یہاں تک جڑا ہوا ہے، بیچ میں کٹا نہیں ہے۔ اہل بیت جہاں نام آیا دماغ میں فوراً نسبت رسول کا خیال آیا، اگر نائب رسول کا خیال آیا تو فوراً یہ رشتہ جا کر کے جڑ جاتا ہے رسول پاک سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ نجد و دیوبند کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے، اور ہمارے عقیدے کا تسلسل یہ نجد و ریاض سے نہیں ہے، ایران سے نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے دربار کو ہر بار آیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس پر قائم رہے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی زبان میں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
गुले गुलजार सियादत जलवा फरमा है। आप इनका शजरे नसब उठा करके देख लीजिए। इनके वालिदे गिरामी, उनके वालिदे गिरामी, उनके वालिदे गिरामी, उनके वालिदे गिरामी, और ये सिलसिला पहुंच जाएगा मौलाए कायनात शेर खुदा तक, जिसका सिलसिला ऐसा पाकीज़ा हो, बीच में कहीं मुनक़ते ना हो, कटा हुआ ना हो। जाहिर सी बात है, जैसे जंजीर एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक जंजीर नीचे की अगर हिलाइए तो ऊपर तक हरकत महसूस होती है, इसी तरीके से अगर आपने मोहब्बत की सौगात इस जंजीर के सामने पेश की तो सिलसिला बसिलसिला वो सौगाते मोहब्बत रसूल पाक के दरबार में पहुंच जाती है। और बगल में अगर आले रसूल के बैठे हुए नायब रसूल तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका अजीम सिलसिला सुभान अल्लाह। ये शागिर्द रशीद अपने वालिद माजिद सदरुल शरिया के हुजूर हाफिज मिल्लत के और हुजूर सदरुल शरिया आला हजरत खातिमुल अकाबिर के मारहरा मुकद्दसा के, और ये सिलसिला गौसे पाक तक पहुंचता है, गौसे पाक से रसूल पाक तक पहुंचता है। अगर आपने इस सिलसिले को मजबूती से थामे रखा तो इंशाअल्लाह न नजदियत के गंदगी में आप कभी गिरने पाएंगे और ना ही कभी राफिजियत और मौलाइयत की गंदगी आपके दामन में लगने पाएगी, बल्कि आप अहले सुन्नत में शामिल रह करके फख्र से कहेंगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मैं मुबारकबादी देता हूँ आप सब लोगों को कि रात के इस वक्त में आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे अभी शाम हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि नूरानी बारात, रहमतों की बारात, जलों की बारात जो आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, ये इन नूरानी शख्सियतों की आमद की बरकत है। रिंद जो जाम उठा ले वही पैमाना बने, जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बने। आप बैठे हुए हैं, ये मैखाना है, मैखाने इल्म हिकमत है, मैखाने कादरियत है, मैखाने रूहानियत है, जिसमें जितना ज़र्फ है अपने आप को उसी तरीके से वो मैखाने से शराब होकर के जाएगा। और इंशाअल्लाह जब वो दोष है मैखाना लेकर के जाएगा तो वो मुस्कुराता रहेगा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते। फितनों का दौर है और आंधियां इतनी तेजी से चल रही हैं कि अगर आपने अपने आप को किसी महफूज और मजबूत किले में बंद नहीं किया तो तबाही, बर्बादी और हलाकत आप के सामने आ सकती है। आंधियां जब तेज चलती हैं, तूफान बहुत तेज आता है, बारिश बहुत तेज बरसती है, ओले बहुत तेज पड़ते हैं, तो आदमी साया तलाश करता है, आदमी साए में जाना चाहता है, आदमी किसी महफूज मकान में जाना चाहता है। अगर ओले पड़ रहे हों, आंधियां चल रही हों, तूफान आ रहा हो तो आदमी सोचता है कि मैं एक मजबूत मकान में हो जाऊं ताकि मेरी जान की हिफाजत हो जाए। अगर आप आंधी और तूफान से बचने के लिए किसी महफूज मकान की तलाश में रहते हैं और आप उस मकान में पहुंच करके अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, तो मजहबी फितनों के इस तूफान में अगर आप चाहते हैं कि आपका अकीदा महफूज रहे, आपका ईमान महफूज रहे, तो जान की हिफाजत के लिए मकान चाहिए और ईमान की हिफाजत के लिए मसलके रज़ा खान चाहिए। इसी मसलक पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहाँ भी सुरखुरू रहेंगे। ये बुजुर्ग शख्सियतें यहाँ पर जलवा फरमा हुई, बेपनाह इनका करम है, इनकी नवाजिश है। हुजूर मुहद्दिस कबीर के जलों का क्या पूछना है। शर्क़ व गर्ब में जिसके इल्म का गलगला है, शिमालो जुनूब में जिसके इल्म हदीस के हवाले से गुफ्तगू होती है। केरला हिंदुस्तान में एक पढ़ा लिखा सूबा माना जाता है और वहाँ के उलमा ये समझते हैं कि इल्म हदीस में हम लोगों का पाया बहुत ही बुलंद है। मुझसे एक मरतबा एक मशहूर आलिम ने ये वाकया जिक्र किया और बताया कि एक मौके पर केरला के बड़े बड़े उलमा बरेली शरीफ जलवागर हुए और उन्होंने हुजूर ताजुल शरिया से मुलाकात की तमन्ना जाहिर की। एक वक्त मुतय्यन हो गया और
हुजूर ताज शरीया अलैहि रहमत व रिजवान की खिदमत में वो केरला के बड़े बड़े उलमा पहुंचे और फिर गुफ्तगू के बाद उनके दरमियान कुछ इल्मी बातें छिड़ गईं, इल्मी गुफ्तगू होने लगी और उसी बीच केरला के एक आलिम ने फिक़्ह शाफ़िई के हवाले से एक मसले के ताल्लुक से एक हदीस पेश की और फिर अपने मौक़िफ़ को हदीस से मजबूत करना चाहा। जब उन्होंने अपनी गुफ्तगू खत्म कर ली, मुझसे उस हिंदी आलिम ने बयान किया। उसके बाद जब हुजूर ताजुश शरिया ने इल्म हदीस का दरवाजा खोला है और हनफी मौक़िफ़ पर जब वो हदीस पर हदीसें पेश करने लगे, हम लोग खुद हैरान थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि इल्म हदीस के इस मौजू पर ताजुश शरिया ने पहले से तैयारी कर ली है और आज हमारे दरमियान हदीसों का ये जो ज़ख़ीरा पेश कर रहे हैं, लगता है पहले से उन्होंने इसको सेट कर रखा है। वो अज़ीमुश्शान ज़ात हुजूर ताजुश शरिया की थी। फरमाते थे कि अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा तन्हा एक फर्द का नाम नहीं है, एक अंजुमन का नाम है। वो तन्हा एक अंजुमन है और फरमाते वो कोई जाहिल ही होगा जो हुजूर मुहद्दिस कबीर की मुखालफत कर रहा होगा। बस्ती बस्ती करिया करिया हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल फ़क़हा, वो सायादार सुन्नत। ये अहले सुन्नत के लिए वो सायादार दरख्त है कि जब ये दरख्त नहीं रहेगा तो बेसाया लोगों को ये दरख्त बहुत याद आएगा। ये वो सायादार दरख्त है कि जिसके नीचे बैठने से दिल भी सुकून पाता है, आंखें भी सुकून पाती हैं। इस उम्र में आप जाकर के शहर के लोगों को देख लीजिए, उनसे अगर कहिए कि जरा 200 किलोमीटर का सफर करना है और एक प्रोग्राम में चलना, अरे भाई मेरी उम्र देख रहे हो, मैं इतना लंबा सफर नहीं कर पाऊंगा। और अगर कोई खींचतान करके गाड़ी में बैठा दिया और पहुंचे अपनी क़यामगाह पर तो कराहते रहेंगे, अरे क्या बताएं, लगता है पीठ टूट जाएगी। और अगर कह दिया जाए जरा जलसे में, तो नहीं भाई मेरी हिम्मत नहीं है। और अगर तकरीर करने के लिए कह दिया जाए तब तो दिवालिया ही हो जाएगा। मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर को रब्बे कदीर ने वो रूहानी कुव्वत अता फरमाई है। सैकड़ों मील का सफर करते हैं और उसके बाद में ताजा दम होकर के आपके ईमान की हिफाजत का सामान। रब्बे कदीर इन बुजुर्गों का साए करम तादेर सलामत रखे। होंगे किसी और के लिए कोई और साहब, लेकिन हम अहले ईमान के लिए सुकून का सामान तो यही शख्सियतें हैं। इनके जलवों को देखिए, क्या ये चेहरे आपको झूठे नजर आते हैं? क्या इनके जलवे आपको झूठे लग रहे हैं? जब इनके जलवों का आलम यह है कि देख करके लोगों का दिल खिंच जाता है। लोग कहते हैं कि नबी के कब्जे में बंदों का दिल कैसे हो सकता है, गौसे आजम के कब्जे में हमारा दिल कैसे हो सकता है? आप जरा गौर कीजिए, आप इस वक्त यहाँ कैसे बैठे हुए हैं? आप दूर दराज से क्यों आए हुए हैं? मैं देख रहा हूँ तकरीबन 50 किलो 100 किलोमीटर के दूर के लोग भी इसमें बैठे हैं। आखिर वो क्या चीज थी कि इनको खींच करके यहाँ ले आई? आप कहेंगे हुजूर मुहद्दिस कबीर लेकर के आए, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत लेकर के आए। जब उनका ये आलम है कि आपके दिल को उन्होंने बस्ती में खींच लिया, तो गौसे आजम अगर अपने गुलामों के दिल को अपनी तरफ खींच ले तो कौन सी ताज्जुब की बात है? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? रब्बे कदीर अपने महबूबों के सदक़े में इन ज़वाते कुदसिया की हिफाजत फरमाए और इनके फैज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। अब मैं बात आगे न बढ़ाकर ईदगाह कमेटी के अरकान जनाब साहब वगैरह हैं, वो जनाब ऐसे हैं कि उनको जनाब ना भी कहना चाहे तो कहना ही पड़ेगा। नाम उन्होंने ऐसा अपना रख लिया है। आपने इन नूरानी जलवों को यहाँ जमा किया। अब
جلدی سے ایک موقع اور آ جائے کہ حضور محدث کبیر ہوں، حضور غیاث ملت ہوں، حضور قائد اہل سنت ہوں، حضور گلزار ملت ہوں، اکابرین اہل سنت کا یہ جلوہ ہو اور بستی والے ان کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں میں نور پیدا کریں اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے اور شہر محبت مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ان کا اتنا رشتہ مضبوط ہو جائے کہ جیسے ابھی آپ نے شعر سنا کہ بٹائے سے نہ مٹے گا، ہٹائے سے نہ ہٹے گا، کٹانے سے نہ کٹے گا رشتہ محدث کبیر کا، یعنی بریلی سے اگر کوئی ان کا رشتہ کاٹنا چاہے لاکھ کوشش کر لے مگر وہ رشتہ کٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے صدر الشریعہ کے واسطے سے بریلی شریف اعلیٰ حضرت سے۔ آپ بھی ایسے ہی اپنا رشتہ مضبوط رکھیے، انشاءاللہ یہاں بھی ان کے سائے میں رہیں گے اور وہاں بھی ان کے سائے میں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے اور ان ذوات قدسیہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ شہزادے حضور فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی انوار احمد امجدی صاحب کا بھی کچھ دیر بیان ہوتا، قاری جمال صاحب کی بھی نقابت ہوتی، مفتی عرفان صاحب قادری جو شہر بستی میں الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں اور اپنے اعتبار سے خدمت دین میں لگے رہتے ہیں، ان کا بھی بیان ہوتا۔ یہ لوگ بھی آپ کو اپنے جلوں سے محسوس کرتے، مگر ایسا زبردست پوسٹر بنایا اراکین کمیٹی نے اور اتنی بھاری بھرکم شخصیتوں کو انہوں نے اپنے ہاں بلانے میں کامیابی حاصل کر لی کہ وقت بھی پناہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا حضور اب ہم کو اجازت دیجئے تاکہ ہم آپ سے رخصت ہو کر کے تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ مطلب یہ ہے وقت تھک سکتا ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کے یہ وفادار نہیں تھکتے ہیں۔ موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا، آؤ ہم تم ساتھ میں بیٹھے اور دین کا کچھ کام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔